Hey guys, welcome back to the channel. Okay, let's start the weekly analysis. We'll go in depth in everything. Okay, we'll firstly check Bank Nifty because मुझे लग रहा है सबसे best I think index out of the three, Bank Nifty, Nifty and Sensex. I think Bank Nifty looks the best. Okay, so we'll start with that. We'll go over Nifty, Sensex, talk about Adani, Bitcoin and HDFC Bank and gold as well. Okay, now before we start the video, I just want to tell you that I have recorded a podcast with a friend of mine. He's from Pune and he's released it on his channel. So if you're interested in like how I became a trader or how I've made my money, how I met Nikita and basically everything about gold, mutual funds, anything. So you can check out that video. I'll put that video in the description below. Okay. So please check out that podcast. And before we start this video, I just urge you to hit the like button and then we'll start. Okay. So first I'm going for monthly charts for Bank Nifty. Why? See, I'm drawing a line about this June high, okay, this event month wala high, and we've already gotten a fake breakout uske uppar pehle. So a lot of people who went long here might have gotten trapped in the down move. Now what is happening? Now I see again we are trying to go up. ठीक है यहाँ पे, which is a awesome thing for bulls. You know what makes this even more special? Because I'll tell you, ये जब नीचे आ रहा था, आपको ये सपोर्ट दिख रहा है, ये जो दो बार सपोर्ट लिया है ना इसने यहाँ पे, उसके नीचे इट हैज ट्राइड टू गो 2 times, मींस 2 times people have tried to sell, 2 times it has trapped them. Okay, so all the sellers, they probably are exhausted as well, and now it seems like we are breaking out and we've gotten the highest Bank Nifty closing ever on the, sorry, we've not gotten, but if the December month ends at its highest point or it ends above 53,200, you would have gotten the highest monthly close ever, which by itself gives you a bullish indication. Now what Nikki told me to tell you, okay, in this video, he told me that this length which is coming, okay, ये length around 3,500 points का आ रहा है, उसने मुझे 4,000 बोलने बोला है आपको, तो 4,000 points का रेंज है ये. तो अभी क्या, जब ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी, ऊपर भी 4,000 points जाना चाहिए, ओके, और अगर ब्रेकडाउन देता है जिसका प्रोबेबिलिटी सीम्स वेरी स्लिम, उसमें भी 4,000 पॉइंट नीचे आना चाहिए. मतलब अभी ट्रेंड होना चाहिए, दैट्स द एक्सपेक्टेशन मंथली चार्ट को देख के, और ये आ भी गया है ऊपर, मतलब हमारे रेंज के ऊपर आ गया है, व्हिच इज वेरी गुड. तो मतलब ज्यादा अभी मंथली में आई थिंक जो कॉल वगैरह बेचेंगे उनके ट्रैप होने के चांसेस हैव गॉन अप लाइक वे हाई नाउ. ओके, नाउ अभी वीकली चार्ट्स पे व्हाट कैन आई सी इन बैंक निफ्टी? यू सी दिस रेजिस्टेंस बीइंग टेकन इन दिस जोन. सी मार्केट हैज क्लोज्ड अबव दिस रेजिस्टेंस. जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देता है ना, तो it becomes very good for the bulls, I think. So उसमें क्या होता है, probability क्या होती है, एक pause candle की बन जाती है next week में, ओके, या तो एक अप मूव की. ओके, सो पॉज में क्या होगा, ये रीटेस्ट को आएगा, ये रीटेस्ट करेगा एंड देन इट्स गोना गो अप. ओके, दैट काइंड ऑफ अ थिंग कैन हैपन ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. मुझे क्या लग रहा है, ये लास्ट 2 वीक्स के जो लोज है, मुझे लग रहा है ये लोज प्रोटेक्ट होने चाहिए नेक्स्ट वीक में, आगे के वीक में. आई डोंट सी देम ब्रेकिंग इन द नेक्स्ट वीक. ओके, मुझे क्लियर कट दिख रहा है. अभी ऊपर जाएगा नहीं जाएगा वो छोड़ो, नीचे नहीं आने का पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई. नाउ ऑप्शन सेलर कैन यूज दिस, येस और नो? आप बताओ मुझे कमेंट्स में, ओके, इफ यू कैन यूज दिस और नो. And I'm drawing the support resistance of on the daily chart, okay, in Bank Nifty. तो मुझे क्या दिख रहा है, नीचे में सपोर्ट, ऊपर में रेजिस्टेंस. ओके, परफेक्ट इन बैंक निफ्टी ऑल्सो. एंड 52,500 जो हमने लास्ट वीक भी बात किया था, जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी, तो इसका ब्रेकआउट वी गॉट एग्जैक्टली वेयर आई टोल्ड यू कि हम लाइक वी वांट दैट, एंड बैंक निफ्टी हैज zoomed up from there. ओके, तो दिस इज एक्चुअली ऑसम फॉर द बुल्स. तो नेक्स्ट क्या होता है, बेसिकली जब भी रेजिस्टेंस टूटता है, ओके, इट विल टर्न इनटू अ सपोर्ट. तो अगर नीचे भी आ गया ये 52,500 पे, यू हैव टू गो लॉन्ग. 52,500 पे स्ट्रिक्टली आई एम टेलिंग यू, शॉर्ट मत जाना, मतलब वहां पे अगर आ गया तो ठीक है, वो ट्रैप करने आएगा. और ये रेजिस्टेंस से ऊपर में अभी स्मॉल रेजिस्टेंस 53,800 में. तो 53,800 इफ यू सी बैंक निफ्टी लाइक गोइंग अबव दिस, लाइक एब्सोल्युटली ट्राई नॉट टू बी इन कॉल सेल्स, पुट बाइज, फ्यूचर शॉर्ट काइंड ऑफ पोजीशंस. ओके, अबव दिस 53,800 लेवल. अगर मैं लास्ट 2 डेज के डेली चार्ट को देखो ना मैं, तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, आई सी एन इनसाइड कैंडल बीइंग फॉर्म्ड. इनसाइड कैंडल, आई लव इनसाइड कैंडल्स, इसके ऊपर वी मेड अ वीडियो ऑल्सो. ओके, सो दे वर्क ब्रिलियंटली. तो इनसाइड कैंडल का अभी जो एक मदर कैंडल होता है और एक जो अंदर का कैंडल है उसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं, तो वो बार भी होता है. ओके, सो अभी जो लास्ट 2 डेज का हाई है उसके ऊपर व्हाट इज गोना हैपन, एनीवन हु सोल्ड इन द लास्ट 2 डेज दे वुड लूज एंड दे वुड लाइक हिट देयर स्टॉप लॉस. तो बायर्स आर टोटली इन कंट्रोल हियर, बराबर. एंड नीचे में इफ इट कम्स वी आर लुकिंग फॉर अ रीटेस्ट, तो आया तो और भी अच्छा है, मतलब यू कैन टेक बुलिश पोजीशंस इफ यू हैव नॉट टेकन इट ऑलरेडी. ठीक है, सो आई थिंक लाइक
लाइक बुल्स आर इन कंट्रोल, वेयर वुड बेयर्स बी इन कंट्रोल? आई वुड, अगर बैंक निफ्टी जो प्रीवियस स्विंग है, ये प्रीवियस स्विंग के नीचे जाके क्लोज करता है ना, ये एक गैप है, ये एक छोटा सपोर्ट रहना चाहिए, बट आई थिंक उसके बाद सोच सकते हैं, मतलब तब तक का प्रॉब्लम क्या है, पर लाइक आर मूव विल गो, जब बिग मूव है ना, लाइक अभी मेरा साइकोलॉजी कैसे चलता है, मुझे अगर ये मूव छूट गया, आई एम कूल विद इट, इंट्राडे में कुछ ना कुछ व्हाइल इट्स कमिंग डाउन, आई विल ट्राई टू अर्न, अगर ऐसा कुछ आता है तो, ओके, बट द प्रोबेबिलिटी इज वेरी स्लिम उसका, एंड आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड इफ इट गोज अप, व्हाट एम आई गोइंग टू डू उसके ऊपर। ओके, सो 15 मिनट चार्ट पे आई हैव कम, ड्रॉइंग द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, दिस आई हैव ड्रॉन बिकॉज दिस इज अ गैप जोन। ओके, और ये तो 2 बार इट टुक 2-3 टाइम्स हियर, एंड दिस इज अ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। ठीक है, तो लाइक दीज 3 प्लेसेस यू कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज। ओके, इफ द मार्केट कम्स, तीनों जगह पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आया तो शॉर्ट मत करना, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट। ओके, सो लास्ट 2 डेज का रेजिस्टेंस इज वेरी इन अ सिमिलर प्लेस, तो वो निकल गया तो यू कैन गो लॉन्ग डेफिनेटली, और ये स्विंग रह सकता है आपका रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये जो स्विंग्स बनाएगा ना बैंक निफ्टी ऊपर जाते जाते, दैट कैन बी योर रेफरेंस पॉइंट। कूल, सो दैट्स फॉर बैंक निफ्टी। लाइक मंथली में बुलिश, वीकली में बुलिश, डेली वगैरह में अगर नीचे आता है, रीटेस्ट करता है, यू हैव टू गो लॉन्ग, यू हैव टू नॉट गो लॉन्ग, आई एम गोइंग टू गो लॉन्ग, यू आर एक्चुअली लाइक सपोज टू डू व्हाट यू बिलीव। अभी निफ्टी का अगर मैं वीकली चार्ट देखो तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, आई सी अ पिक्चर परफेक्ट लाइक ऑसम काइंड ऑफ अ कैंडल क्लोजिंग अबव अ रेजिस्टेंस। ओके, जो लास्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, ऑफ कोर्स दिस इज अ गुड थिंग। ठीक है, तो अभी नाउ व्हाट टू डू इफ द मार्केट कम्स डाउन इन निफ्टी। ओके, इफ द मार्केट कम्स डाउन 24,500 पे आप लॉन्ग जाओ, सॉरी मैं लॉन्ग जाने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, वाई? बिकॉज वीकली चार्ट में वी गॉट इन द ब्रेकआउट, इट माइट रीटेस्ट एंड देन इट माइट गो अप। ठीक है, इसलिए 24,500 मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है ये, एंड वीकली चार्ट्स को देख के लग रहा है अभी ये नीचे का स्विंग एक बन चुका है हमारा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंसोलिडेशन हो रहा था, उसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया, तो दिस वाज अ न्यू स्विंग, राइट? यहाँ पे सेम मुझे इधर दिख रहा है कि एक स्विंग लो बन चुका है, एंड नाउ प्रोबेबली लेट्स सी, जब वो बेरिश इंडिकेशन बनाएगा वीकली टाइम फ्रेम पे, देन आई विल टेल यू पक्का कि इसका प्रोबेबिलिटी नीचे आने का है या नहीं है। ओके, सो फर्स्ट थिंग, अभी डेली चार्ट में वेयर आर यू गोइंग टू बी अग्रेसिवली सेलिंग इन निफ्टी? सी व्हाट हैपेंड इन निफ्टी, ये जो है ये गैप फिल करने आया ये, एंड इट हैज गॉन अप। ठीक है, तो इसे स्विंग लो लगाया उसने, हमको क्या चाहिए? लोअर लो चाहिए, ऐसा लोअर लो का पैटर्न चाहिए हमको। तो व्हेन विल लोअर लो हैपन? 23,900 के नीचे जब जाएगा ना ये और तब क्लोजिंग देगा, तो हमको लगेगा अच्छा ये अप मूव था, वो फेल हो चुका है, एंड देन अभी डाउन मूव में कन्वर्ट होने वाला है वो। ठीक है, तो प्रीवियस स्विंग के नीचे व्हेनेवर इट गोज, रिमेंबर दिस। ओके, उसके पहले वी आर नॉट गोइंग टू सर्च फॉर अग्रेसिव सेलिंग ट्रेड्स एट ऑल, एट एनी कॉस्ट। चाहे मिस हो गया तो मिस हो गया, ओके, उसमें रोने का नहीं है उसमें, पर लाइक अग्रेसिवली अगर सेल करना है तो आपको 23,900 के नीचे करना है, बिकॉज दिस इज अ स्विंग लो फॉर यू। एंड निफ्टी अगर नीचे आता है आपको, ठीक, क्योंकि मुझे दिख रहा है यूएस मार्केट 150 पॉइंट्स डाउन है, एसजीएक्स मैंने अभी चेक किया था 10 मिनट पहले, वो 50 पॉइंट्स डाउन था, थोड़ा सा डाउन ओपन हो जाएगा, एंड देन प्रोबेबली इफ वी टेक आउट द 15 मिनट हाई, देन वी कैन रिज्यूम द जर्नी ऑन द अपसाइड, ओके, फॉर द वीक, नेक्स्ट वीक। एंड 24,500 इज अ गुड लेवल टू ऐड लॉन्ग्स। अभी निफ्टी एक्सपायरी देखो, इसको एक्चुअली वो देयर इज वन, आई थिंक मैं काफी पढ़ रहा हूँ ये सोशल मीडिया पे भी, वो IITian जो लोग होते हैं ना, दे पेइंग देम लाइक 4.5 करोड़, ओके, 4.5 CR एज सैलरी for Jane Street. These guys are doing too good of a job. I'll tell you why. It's actually hilarious. मतलब वो जो कर रहे हैं ना, इतना फनी है ना ये, क्योंकि on this day they've screwed everyone, और यहाँ पे मतलब सब लोगों को they might have gotten a headache जिसने भी ट्रेड किया होगा, and maximum लोग मेरे, I know some of my friends also, now they didn't trade Friday. So what happens यहाँ पे एकदम easy day without spike, सब कुछ जीरो गया सेंसेक्स में। सेंसेक्स का स्ट्रैडल था 900 रुपीज का, विदाउट स्पाइक इट हैज गॉन टू जीरो। ओके, तो कीप इट इन माइंड, आपका जब भी वन ऑफ द वर्स्ट वीक्स होगा ना आपके लाइफ का, उसका देखो आप नेक्स्ट वीक काफी इजी होगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट वीक ऑल्सो टू गो वेरी इजी, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव गॉटन स्क्रूड ऑन लाइक थर्सडे इन द निफ्टी एक्सपायरी। तो उनका क्या होता है, दे ट्राई टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिंग फॉर अ वीक, लाइक दे ट्राई टू स्टॉप फॉर अ डे, okay, and कुछ तो they do something like this sort. This is not like ऐसे price action backed. I'm just telling you, destiny वैसा ही चलता है कि अपनी लग गई, अपन नहीं करते ट्रेड, उस तभी बेस्ट चलता है फिर सब कुछ। If it double, like you feel bad, you already lost big, and now when the market is giving you easy money, you feel double bad then. So like they are doing too good of a job, these Jane Street people. Anyway, so 15-minute charts पे what are we seeing? We are seeing aggressive selling kind of a year, okay? And we are seeing buying on the downside. तो नीचे में support, ऊपर में resistance. I'm going to go long above 24,800. Why? Because this selling will be absorbed by then. And नीचे में अगर आया तो I already told you I'm going to look for buy on dip kind of opportunities.
एंड ओनली वी आर गोइंग टू सेल पोजिशनली बिलो दिस स्विंग लो। यहाँ पे मार्केट जहां पे गैप टेस्ट करने आया एंड देन इट्स गॉन अप, ये स्विंग लो के नीचे लोअर लो मारेगा जब भी, दैट टाइम वी आर गोइंग टू लुक फॉर अ सेल अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज नो। छूटा तो छूटा, नो वरीज। सी सेंसेक्स हैज क्लोज्ड अबव द लास्ट 1 2 3 4 5 वीक्स, ओके 5 वीक्स के हाइज के ऊपर, इसका इंडिकेशन मैसिवली बुलिश है सेंसेक्स का, ओके। तो इसमें भी याद रखना आप, अगर ये नीचे आता है, लेट्स से दिस कम्स डाउन टू टेस्ट दिस लेवल 80,500, 8500 पे अगर आपको गलती से सेंसेक्स मिला, आप ट्राई कर सकते हो पुट ऑप्शंस बेचने में प्रीवियस स्विंग के नीचे, ओके आपको जो भी स्विंग लो दिखता है आपको उसके नीचे का ऑप्शन यू कैन ट्राई एंड सेल, एंड अकॉर्डिंग टू योर रिस्क यू कैन मैनेज इट। बट 8500 इज अ रियली गुड लेवल बिकॉज द ब्रेकआउट हैज हैपेंड। सो ब्रेकआउट रीटेस्ट करने आता है, एक कंसेप्ट है ब्रेकआउट का वो, ओके। सो व्हेनेवर इट कम्स फॉर अ रीटेस्ट, वी डोंट लुक फॉर सेल देयर, वी लुक फॉर बाय, ओके। एंड सेंसेक्स में आई आल्सो पोस्टेड ऑन दिस यूट्यूब कम्युनिटी टैब, आई पोस्टेड की सी लाइक वी येस्टरडे व्हेन आई मेड द वीडियो, आई सेड कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टूटा है, तो यहाँ पे इट शुड बिकम अ सपोर्ट, and I'm seeing some resistance here, so you can sell options outside this range and profit. And I got a few comments thanking me for this, so just updating you, this analysis has worked out brilliantly, okay। last 2 days you're seeing an inside candle, ये जो अंदर वाली कैंडल है बहुत छोटी है, बहुत अच्छा है, जो तो इसके ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हो आप, ओके इसके ब्रेकआउट को अपसाइड या डाउनसाइड। एंड ऐसे प्लान करना कि फर्स्ट टाइम इफ यू गो रॉन्ग या तो भी सेकंड ट्रेड यू कैन टेक, वैसा प्लान करो आप। सेंसेक्स में नाउ व्हाट डू वी वांट, नाउ सेंसेक्स में ऑलरेडी वी हैव गॉटन अ गुड मूव ऑन द अपसाइड, तो लोगों ने ऑलरेडी आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो कमाया होगा सेंसेक्स में पुट बेच के। और व्हाट वी वांट वन डेली कैंडल क्लोजिंग अबव 82,300, ये अगर आया तो मजा आ जाएगा, और भी फिर तो एक खत्म, ये जो बेरिश लोग जो है ना यहाँ पे फिर खत्म हो जाएंगे, फिर रैपिडली, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको 52,500 का बताया ना मैंने, आई थिंक सेंसेक्स में वो लेवल 82,300 है, तो 82,300 के ऊपर आई थिंक इल जूम अप लाइक एनीथिंग, देन वन डेली कैंडल क्लोज वी वांट अबव दैट, ठीक है। तो सेंसेक्स में व्हेन यू गोइंग टू लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज, सेम कांसेप्ट, यहाँ पे गैप फिल हो चुका है, मार्केट वेंट अप, केम डाउन एंड मेड अ न्यू हाई, तो द प्रीवियस स्विंग लो हैज टू ब्रेक, लोअर लो लगाना चाहिए, ओके इसमें भी, एंड देन यू गोइंग टू लुक फॉर सेल ट्रेड्स, अदरवाइज लाइक ट्राई टू अवॉइड इट। तो दिस इज माय अडानी एंटरप्राइजेस चार्ट व्हिच आई हैव डिस्कस्ड लास्ट वीक, आई टोल्ड यू रीटेस्ट पे जब आएगा, सी माय चार्टिंग इज ऑलरेडी देयर, रीटेस्ट पे आएगा, you have to go try to go short there, okay, and then it might continue its downward journey। अभी के लिए अवॉइड, इन्वेस्टिंग के लिए अवॉइड अगेन, एज आई सेड, बिकॉज जस्ट कंफर्मिंग अगेन, ये एक रेड कैंडल आई थी, बैड न्यूज, उसके बाद भी काफी गिरा है अडानी, सो यू डोंट नो ये बॉटम है कि नहीं। सेम बिटकॉइन, माय लास्ट वीक चार्ट ऑल्सो, लुक फॉर अ ऑल टाइम हाई रीटेस्ट, अगर नीचे आता है तो, वरना लेट इट गो, जितना ऊपर जाना है जाने दो, रीटेस्ट करने कभी ना कभी आएगा, दैट टाइम यू गो लॉन्ग। अभी तो मतलब बिकॉज वी अपडेटेड इट जब नीचे था, ये परफेक्ट टाइम पे आई थिंक निकिता ने अपडेट किया इसका, तो you have, if you miss this move, you miss this move, like it's okay, it's cool। रीटेस्ट तो ऐसे हजारों स्टॉक है, मतलब जो ब्रेकआउट देते हैं, तो इतना फोमो लाना नहीं है, मतलब। एंड are one of our stocks which controls our favorite index, Bank Nifty, okay, so we've gotten a weekly breakout इसके ऊपर HDFC बैंक में, ठीक है। तो HDFC बैंक, if by mistake you get it at 1794, it is definitely a buying opportunity, it's going to be a retest, and then it's going to look for an up move, okay, so you can take previous swing का stop loss if अगर आपको बड़े मूव के लिए जाना है तो, ठीक है, क्योंकि बड़ा ब्रेकआउट है ये, बहुत टाइम के बाद का ब्रेकआउट है, देखो आप इतना टाइम उससे तंग किया है लोगों को, उसके बाद हाईएस्ट क्लोजिंग एवर है HDFC बैंक में। एंड बैंक निफ्टी में यू रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, लाइक 4000 पॉइंट्स इट हैज टू गो अप, तो मुझे तो दिख रहा है कि बैंक निफ्टी हैज टू गो अप, एंड आई एम आल्सो सीइंग बैंक निफ्टी का जो मेन इंडेक्स है HDFC बैंक, that also is primed to go up, it is a shorting के लिए नहीं दिख रहा है मुझे, so I think it like it's pretty smart to go long and play bullish here as per me and Nikita, ठीक है। सो लाइक HDFC बैंक को ध्यान में रखना आप वीकली टाइम फ्रेम को, एंड डेली टाइम फ्रेम पे इफ यू गेट इट एट 1794 लुक फॉर लॉन्ग एंट्रीज, ओके, और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऊपर अगर जाए तो बहुत मस्त हो जाएगा वो भी। गोल्ड का क्या हो चुका है, लेट्स डिस्कस गोल्ड ऑल्सो। गोल्ड एक्चुअली वी टोल्ड यू टू गो लॉन्ग समवेयर हियर, and वहां से it's up, okay, quite a bit, and now it's come for a retest, and now again it's resuming its upward journey। तो हमको गोल्ड में like if you want to go long again, you're going to go long up the last 3 weeks का high, okay, वहां पे एक्चुअली बाय करने में सेलिंग काफी कम हो जाएगी वहां पे, to try to buy there, you won't feel like huge selling pressure come after that level 77,600 if it's crossed, ठीक है, इसको ध्यान में रखो। एंड नीचे में not much actually, like we'll see how it react on a weekly basis। इसको वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, मतलब अगर ये नीचे भी आता है तो हमको डरने नहीं वाले, हम लॉस में भी गए अगर तो इसमें तो और अच्छा है, वी कैन एक्चुअली बाय मोर, क्योंकि एवरी वीक कुछ ना कुछ ट्रेडिंग प्रॉफिट आ रहा है ना, तो कैपिटल कीप्स ग्रोइंग थोड़ा थोड़ा, तो दैट
profit can be put here also to take additional risk. So it's no problem if it goes wrong also. We actually welcome it. Now a few questions, okay, I'll take. Great analysis, sir. Sold put and call at previous day high and low, got good returns. Awesome, very good. Okay, and sold 8300 put at 70 yesterday's closing, again awesome. Okay, so you used to say after a big candle, next day if it opens within the pre-day level, it can be an inside candle, correct? Okay, so that gave confidence, agreed. It's a good concept to make money off. An additional thing you can write is, a lot of people, if they're screwed, then next day can be easy. That's another concept. Weekly, please cover Nifty and Sensex. I've already done this, and you used to post aggressive, moderate and conservative weekly ranges that you can cover in weekly. Okay, I'll do this from next week because already my video has become too long for now. I'll do this next week if I make the weekly analysis video. If not, I'll tell Nikita to do this. Also, yesterday I could have been more sympathetic, except the brutality of moments that you said. Though you said you made 0.4%, just a suggestion. Agreed. Chalo, I'm sorry. Like, I shouldn't have done that. I'll try to be more sympathetic in the future. Okay. Probably, like, I think it was maybe wrong on my part then. But I'm genuinely like I don't do expiry trading on Nifty. So I'm just sharing like how we have avoided that loss. That was the point. It's not to like sound cool and all. Okay. Ideally, one should be in the reacting business and not prediction business. Correct. But I'm reacting to the market, what it does and what it has done in the past. Okay, that's all. So the probability becomes very high if you do this. Looking at the daily candle closing, do you still think we can target all-time high? If you're reading this, I'm sure you've seen the multi-time frame weekly, what I've done monthly in Bank Nifty. I expect way bigger targets than all-time high here, like 3,000-4,000 points minimum. That's it, I think, for this video. We'll cover something if it arises in the next few days. And just a reminder to hit the like button and please watch my podcast if you want to. So I'll see you very soon. Bye-bye.